morning students, we are back with our online session. This session is for class 9, subject geography. We are going to continue the further part of the chapter number 2, physical features of India. There were 6 physical features we had discussed in our very first lecture of this chapter. Those were mountains, plains, plateau, islands, deserts and coastal plains. And in that we had first discussed about the Himalayan mountains and then about the northern plains, and now we have the third part, the peninsular plateau. हमारा third part है peninsular plateau, right? So what is plateau first of all? Plateau क्या होता है? Plateau is a certain land which is elevated, मतलब वो कुछ ऊंचाई पर कुछ लैंड होती है, जैसे टेबल कैसी होती है? इट इज वो थोड़ी सी ऊंची होती है, उस तरह से ही हमारा जो प्लेन लैंड होता है उससे ऊपर उठकर जो लैंड होती है उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं. कुछ 2000 या 3000 मीटर फ्रॉम द लैंड जो ऊपर उठी हुई लैंड होती है, दैट वेरी लैंड इज कॉल्ड एज प्लेट्यू, राइट? सो वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू. व्हाई पेनिनसुलर? बिकॉज इन इंडिया दिस, look at this map, this part from here, this part is known as peninsular plateau and it is triangular, right? Triangular ही है ना, जैसे कि जब यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये पूरा बीच का पार्ट, ये plateau region. So this plateau region is triangular. It is peninsular because peninsular land क्या होती है? The land which is covered by water on all 3 sides, like here Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean. That land is known as peninsular, and उसके बीच में यहाँ पे plateau, इसलिए इसको बोलते हैं peninsular plateau, right? Then composition. How is it composed? मतलब उसमें यहाँ जो है, यहाँ पे rocks, soil वो किस टाइप की है वो देखते हैं. Old crystalline. Crystalline means transparent. They are old and they are transparent type of rocks. Igneous and metamorphic rocks. Igneous rocks वो होते हैं जब है ना, supposingly volcano has erupted, उसमें से lava और magma निकलता है, right? And when that lava or magma cools down, there is formation of certain types of rocks, and those rocks are known as igneous. Igneous क्योंकि वो आग में से निकलते हैं, अग्नि में से निकलते हैं, right? And metamorphic. And when this igneous rock cools down and it is subjected to high heat, high pressure and some type of high minerals, मतलब जब igneous rocks cool down हो जाते हैं उसके बाद उनमें formation होती है कि वो बहुत सारे pressure में जाते हैं, अलग temperature में जाते हैं और वो वहाँ पे जो मौजूदा soil है उसमें mix हो जाते हैं, तो उस टाइप से एक अलग rocks का formation होता है और वो बोलते हैं metamorphic rocks, right? So this Deccan Plateau is composed of old, crystalline, igneous and metamorphic rocks. Formation due to breakdown of Gondwana land. How is it formed? ये form कैसे हुआ है? Due to breakdown of Gondwana land. What is Gondwana land? जैसे कि आज से अगर हम बहुत सालों मतलब हजारों करोड़ों साल पहले जाए तो क्या था? पूरा जो ये अर्थ है और इसके ऊपर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है ना, they were one, it was one part, and after that many earthquakes, volcanoes और natural disasters took place, and when the plates shook, मतलब जो plates होती है अंदर, ये जो लैंडमास है इसके अंदर जब वो हलचल हुई तो क्या होता है? earthquake आता है तो लैंड ऐसे सेपरेट हो जाती है, आपने देखा है ना कभी? तो उस तरह से अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस बहुत आया और उसके बाद ये लैंड कैसे हो गई? सेपरेट, अपने से एक दूसरे से दूर दूर जाने लगी, और जब वो दूर दूर गई लैंड तो अलग अलग बीच में सी पानी आ गया और उसके बाद लैंड, कुछ पानी कुछ लैंड, ऐसे ही हमारे आज है ना 7 कॉन्टिनेंट बने. और उसी में जब ये एक लैंड मास हुआ करता था पूरा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नीचे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एशिया, ये सारा एक जॉइंट पार्ट था और उसी को हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड. और जब ये गोंडवाना लैंड में जब अर्थक्वेक वगैरह, जब ये सेपरेशन हुआ तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया?
मिलते हैं। Then what are the characteristics? It is broad. As you can see, this is broad. It has shallow valleys. Shallow means यहाँ जो valleys होती है वो ज़्यादा deep नहीं होते. They are not so deep. They are shallow. And rounded hills. How are the hills? They are not pointed. ऐसे pointed नहीं है, but they are rounded instead. So do you get this? This was the introduction of peninsular plateau. Okay, now plateau के मैं आपको क्या बता रही हूँ, डिवीजन, मतलब प्लेट्यू हमारे इंडिया में प्लेट्यू के डिवीजन कैसे कैसे। तो आप क्या करोगे इसमें, ये नोट्स तो आपको लिखने ही है, राइट। अब इसमें मैपिंग पार्ट, इसमें आपका ये एडिशनल वर्क है कि आप इंडिया के मैप लेके आ जाओ और उस मैप में आप जो भी प्लेट्यूज भी मार्क करवाऊंगी, मैं आपको अभी समझाऊंगी, वो सारा आपका होमवर्क होगा। एक्स्ट्रा में आपको प्लेट्यूज मैप के ऊपर मार्क करना है। डू यू गेट दिस? सो while writing, while noting down this division, this flow chart, what you have to do? You take one page, जैसे आपका जो पेज है ज्योग्राफी के पार्ट में एक पेज, और उस पूरे पेज पे आप या तो 2 डिवीजन करो या एकदम स्पेशियस होना चाहिए आपका जो फ्लो चार्ट आप बनाते हो। एक साइड सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में और दूसरे साइड डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। उस पेज पे आपको फ्लो चार्ट एकदम नीट एंड क्लीन वे पे बनाना है। ओके, नाउ डिवीजन प्लेट्यूज, वी हैव 2 टाइप्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। सबसे पहले जैसे कि हमको पता है कि this part is plateau region, but it has 2 divisions. Okay, so first one is central highlands. Central highlands कौन से होंगे? अब नर्मदा रिवर कहाँ? मालवा, जो मालवा प्लेट्यू है तो यहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है and it flows like this, right? Here, नर्मदा रिवर. So everything, sorry, from here, this way. So all the part above Narmada river, all the part above Narmada river is known as central highlands. It has which ranges? It has Vindhya range, Satpura range and Aravallis to the northeast. Here, this S, ये S is for Satpura. So इसकी south boundary कौन सी है? Central highlands की, it is Satpura range. Above that we have Vindhya range, and to northeast it marks the boundary of Rajasthan, right? Rajasthan में कौन से hills है? Aravalli hills है. So Aravalli hills जैसे माउंट आबू वगैरह है वो Aravalli hills से बनते हैं। And इसके बाद क्या है? Aravalli hills, and to its north further we have desert region, right? We have desert region. Then next, rivers. We have rivers like Ken, Betwa, Chambal, Sindh and many more. These are the main rivers. Mahi, Tapi, Narmada, they are also a part of central highlands, right? So what is the main part? This central highlands are the major part of Malwa Plateau. ये मालवा प्लेट्यू है और सेंट्रल हाईलैंड सबसे ज्यादा किसके पार्ट है? मालवा प्लेट्यू, उसमें ही है ये सारे रेंजेस, विंध्य रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज। एंड टू ईस्ट, मालवा रेंज के ईस्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये BU इज फॉर बुंदेलखंड, PG इज फॉर बागेलखंड, आई हैव रिटन ओवर हियर। सो टू ईस्ट वी हैव बुंदेलखंड और बागेलखंड रीजन। बुंदेलखंड में कौन से, जैसे झांसी, बहुत सारा MP का पार्ट और थोड़ा UP का पार्ट, ये दोनों पार्ट मिलके बुंदेलखंड और बागेलखंड, थोड़ा सा झारखंड का पार्ट, ऐसे छत्तीसगढ़। तो ये सारे मिलके हमारे क्या बन रहे हैं? बुंदेलखंड और बागेलखंड। और ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है और इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड फर्दर ईस्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इस सेंट्रल हाईलैंड्स के और भी ईस्ट अगर जाओगे आप तो इट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। CNP is for what? छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड इट इज ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जो है ना वो ज्यादातर तो झारखंड में और वेस्ट बंगाल में है, तो दामोदर रिवर वहाँ पे फ्लो करती है। सो दिस वाज अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नाउ फर्दर आई विल एक्सप्लेन
and now Deccan Plateau to south of नर्मदा। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे नर्मदा रिवर यहाँ से ओरिजिन होती है, राइट। नर्मदा रिवर वॉज सदर्न बाउंड्री ऑफ, नर्मदा के नॉर्थ में क्या थे, सेंट्रल हाईलैंड, तो नर्मदा के साउथ में होंगे डेक्कन प्लेटू, राइट। देन सतपुरा टू नॉर्थ, और नॉर्थ में ही सतपुरा की भी बाउंड्री नॉर्थ में ही है ना, नॉर्थ में सतपुरा थे, जैसे सेंट्रल हाईलैंड उसके नीचे सबसे नीचे सतपुरा रेंजेस थे, वो क्या थी, सदर्न बाउंड्री थी सेंट्रल हाईलैंड्स की। सो इट इज द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू यहाँ पे, सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ पे, और ये बीच में है। नॉर्थ साउथ की बाउंड्री कौन डिसाइड कर रहा है, नर्मदा रिवर और सतपुरा रेंज डिसाइड कर रही है। देन महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड द माइकल रेंज, माइकल रेंज टू ईस्ट। सो इसके ईस्ट में, इसके यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू हमने देखा, राइट। सो वी हैड सीन छोटा नागपुर प्लेटू ओवर हियर। So here and here it was Malwa Plateau, and here we have Mahadev Hills, Kaimur Hills and Michael Range. ये this part। सतपुरा के थोड़ा सा साइड में, नीचे के साइड हमारे पास कौन से है, महादेव हिल्स, काइमूर हिल्स एंड माइकल रेंज। एंड दिस एक्सटेंशन, दिस फॉर्म्स द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे नीचे के साइड है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में है ये डेक्कन प्लेटू पे। दे आर हायर इन वेस्ट एंड जेंटल टू ईस्ट। अब जो डेक्कन प्लेटू है इस साइड की हाइट ज्यादा है, दे आर हायर टू वेस्ट एंड जेंटल, मतलब नॉट सो हाई इन ईस्ट। देन वी हैव नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, मेघालय, कर्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ कैगर हिल्स। सो ये क्या है, ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है। यहाँ पे इसका हमें ऐसे ईस्टर्न एक्सटेंशन भी मिलता है डेक्कन प्लेटू का। और ये डिवाइडेड कैसे है, छोटा नागपुर प्लेटू इस चीज को डिवाइड कर रहा है, एंड आफ्टर दिस वी हैव ईस्टर्न एक्सटेंशन। और ईस्टर्न एक्सटेंशन में उसको ये सारे नामों से जाना जाता है, मेघालय हिल्स, कर्बी आंगलोंग, नॉर्थ कैगर हिल्स। डू यू गेट दिस? एंड देन टू नॉर्थ ईस्ट, टू एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोमिनेंट हिल्स है। वी हैव 3 prominent hills in Meghalaya region. So they are Garo, Khasi and Jainetia. Which Garo, Khasi, Jainetia hills, they are to the northeast. ये आप समझ लेना कि मैं S लिखूँ तो it is south, N लिखूँ तो it is north, for W it is west, and to east it is east, and for N it is northeast. So I want to make concise notes for you people कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आए। So for that reason, do you get this? This was all about Deccan Plateau। Deccan Plateau में अब हम Deccan Plateau का और एक पार्ट पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में। अब ये तो जैसे आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये Deccan Plateau है आपका। अब इसमें यहाँ का जो पार्ट है और यहाँ का जो पार्ट है, जैसे मैंने बोला ये तो आपकी कोस्ट है क्योंकि ये पानी से लग रही है, राइट। इस कोस्ट के अंदर के साइड आपके क्या आता है, घाट्स रीजन आता है। कौन सा रीजन आता है, घाट्स का रीजन। और उसमें ये वेस्ट में तो इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, एंड दिस आर टू द ईस्ट, सो दे आर नोन एज ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स थोड़े अंदर के साइड है और वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल कोस्ट को लग के ही है। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी regions of India. They hold a huge amount of flora and fauna. We will study the differentiation now. Now we have our part about differentiation between Western Ghats and Eastern Ghats. What I said, this is Deccan Plateau, and to its west, from here, from Maharashtra to Kerala, means I suppose from तापी और नर्मदा वैली, मतलब यहाँ जहाँ पे वो फ्लो कर रही है, गुजरात कोंकण रीजन, बॉम्बे रीजन टू कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ तक नीचे तक वी हैव गॉट फ्लो ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एंड टू दिस ईस्ट वी हैव ईस्टर्न घाट्स।
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है. क्या है? इट हैज डेंस फॉरेस्ट एंड दिस बोथ could be this eastern and western Ghats are meeting here at a point and that is Nilgiri Hills. Nilgiri Hills वो एक ऐसा point है जहाँ पे eastern Ghats और western Ghats they meet together or they merge together. Do you get this? And then it has rich dense forest. बहुत सारे flora, fauna, बहुत कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. Do you get this? Like यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स है, एलिफेंट रिजर्व्स है, मैनी वास्ट एंड इट इज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन. नाउ वी विल सी अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस एंड ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस. दे आर कंटिन्यूअस, कहीं पे भी ऐसे टूटे हुए नहीं बीच में, दे आर कंटिन्यूअस. एंड इफ यू वांट टू क्रॉस दिस रीजन फ्रॉम ईयर टू ईयर many passes will come and उन passes के जरिए, उन घाट्स के जरिए, उन रोड्स ऐसी जो गोल गोल रोड्स होते हैं उनके जरिए आप उनको पार कर सकते हो. एंड दे आर डिसकंटिन्यूअस, बीच बीच में यहाँ पे टूटे हुए हैं. दे आर डिसकंटिन्यूअस इन रीजन इन फॉर्मेशन. हायर देन ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स. यहाँ पे जो हियर वी विद द माउंटेन्स वी हैव दे आर हायर इन हाइट देन ईस्टर्न घाट्स. So what is the average range? They are from 900 to 1600 meters and eastern Ghats are lower than western Ghats and they are about 600 meters. From Maharashtra to Kerala, they are stretching from here to here, from Maharashtra to Kerala region, and eastern Ghats are stretching from Mahanadi Valley to Nilgiris. Mahanadi Valley यहाँ पे, as you know, Mahanadi river flows through Odisha and there is Hirakud dam over it, right? So Mahanadi Valley to Nilgiris, this point up to here, and they are dissected by many east flowing rivers. यहाँ पे बहुत सारे rivers निकलते हैं, आपको पता है ना, जैसे कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी. they flow through, they originate in Western Ghats. वो originate Western Ghats में होते हैं, but they flow through Deccan region, Deccan Plateau. And they are dissected, they cross the eastern Ghats and they drain into Bay of Bengal. Bay of Bengal में फिर वो drain कर देते हैं अपने आप को, right? And highest peaks ये बहुत important है, they are very important. It is Anaimudi, it is 2695 meters. East Deccan Plateau का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? अनाईमुडी. और वैसे अगर हम हिमालयस का हाईएस्ट देखें तो वो होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है. इट विल बी माउंट एवरेस्ट. वो दुनिया का भी सबसे ऊंचा है और इंडिया में जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर पर तो वो वहाँ पे सबसे ऊंचा है, राइट? एंड इन डेक्कन रीजन वी हैव अनाईमुडी एंड दोड़ा बेट्टा. दे बोथ द माउंटेन्स आर ओवर हियर इन नीलगिरी रीजन. And in eastern Ghats we have Mahendragiri. Mahendragiri is over here. In Mahanadi Valley region. And second important thing, Deccan Plateau जो है वो कैसे बना हुआ है? Which type of soil? Black soil is found over here. और यहाँ पे कौन सी खेती सबसे ज़्यादा होती है? Black soil पे cotton की, right? Cotton is grown very much immensely by people. It is one of the most important cash crops. जिसको बेचने से आपको तुरंत पैसा मिल जाता है. It is very important cash crop. So this was about Peninsular Plateau. I know it is very wide part. इसमें आपके introduction है Central Highlands, then Deccan Plateau, and then you have differentiation between Western Ghats and Eastern Ghats. You have to map भी आपको करना है. Central Highlands you have to mark the ranges. Deccan Plateau you have to mark the ranges from from north to south and from east to west. You have to mark all the ranges. And yes, जो Western Ghats है उसमें बहुत सारे क्या है? हिल स्टेशंस भी होते हैं. जैसे आपने सुना होगा कोडाईकनाल, मुन्नार, टेकड़ी, अलप्पी. So ये सारे इन रीजन्स में, ऊटी, मैसूर. So this very important hill stations are found in towards Western Ghats. So this was all for today.